हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो मैं इस लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਦਿਨ 10 ਔਰ 15 ਮਿੰਟਸ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਥਿਉਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ एक्स ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ दैट इज -1 to 1 ਤੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ -π/2 to π/2। cos ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡੋਮੇਨ -1 to 1 ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ, ਰੇਂਜ ਇਜ਼ 0 to π ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। tan ਤੇ cot ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ cot ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ दैट इज इन ओपन 0 to π अगेन। सेकंड ਤੇ कोसेकंड इनवर्स ਦੀ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਕਸੈਪਟ ਇੰਟਰਵਲ -1 to 1 ਤੇ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਯੂ व्हाट इज द डोमेन ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan, मतलब डोमेन भी पूछ सकते हैं और रेंज भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ sin इनवर्स x cos इनवर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਖੋ साइन इनवर्स -1/2, मैं 2-3 एग्जाम्पल्स इतने फोकस कर रहा। कोस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स -1/2। फिलहाल आप दो की गल कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आप साइन ते कॉस इनवर्स की कर रहे हैं। आ इहदी रेंज है, दिस इज ऑफ साइन इनवर्स, ये अपनी cos इनवर्स x की रेंज। थोड़ी वैल्यू स्टार्ट करिए 1/2 साइन दे किहड़े वैल्यू तो होंदा 30 पे माइनस साइन π/6। एम आई राइट। 1/√2 बार cos है, cos 45। 1/2 cos 60 -√3/2 sin 60। Am I right? Now आप ऑलरेडी +1 कर चुके हैं। साइन ऑफ -θ इज -sin θ, cos ऑफ -θ इज cos θ। हुण आप राइट टू लैफ्ट चलांगे, मतलब -sin θ ये बन गया। दिस इज देयर, ठीक। इत्थे ओके है। हुण नैगेटिव प्रॉब्लम, कॉस ऑफ नैगेटिव पॉजिटिव आंदा है, कॉस ऑफ नैगेटिव पॉजिटिव आंदा है। ये च आपां नैगेटिव इहदे अकॉर्डिंग शिफ्ट या एडजस्ट नहीं कर सकते। इत्थे की करांगे, इन सैकेंड क्वाड्रेंट कॉस नैगेटिव हुंदा है, कॉस 180 माइनस एंगल एक ही होंगे अपने को नैगेटिव होंगे। रीजन कॉस की जो रेंज है वो 0 to π है, पहले दो इंटरवल ने, पहले दो इंटरवल, तो जेड़ा अपना आंसर है दैट शुड बी इन फर्स्ट 2 इंटरवल्स। ये गल याद रखनी है अपनी। जो रेंज कही है साइन इनवर्स एक्स की -π/2 to π/2 है, तो ये वैल्यू ये होनी चाहिए है। कहने का मतलब इत्थे आ गया 0 to π/2, जो डायरैक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲॉकवाइज करता वो नैगेटिव बन गया। तो इन द सेंस अगर आप कहिए दो क्वाड्रेंटां दे विच, एक फर्स्ट एक रिवर्स, एक्चुअली अपना फोर्थ बन गया लेकिन एक डायरैक्शन क्लॉकवाइज होगी तो ये नैगेटिव, तो इसका आंसर इत्थे होना चाहिए।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਸਾइन ਨੈਗੇਟਿव or normal sine of minus theta is there. Now sine inverse of sine of खत्म, तो आंसर इज दिस। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਆ ਆਪਸ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ दैट इज 2 पाई बाय 3 ਇਹ माइनस पाई बाय 3। इज इट ओके? तो आ चीज अपने कोले अगर cos नेगेटिव आ गया, हुन मैं दा रिजल्ट लिख रहा की है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रेंज, बट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज दिस। देखो ही कितना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2 दैट इज देयर। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 30। ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ cos ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ दैट इज देयर। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ 60 ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬਣੇ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਜੋ ਇੱਥੇ x ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਵੀ ਟੈਕਲ, ਅਗਰ ਸਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਵੀ टैकल। उस तो बाद होर एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं। सपोज मैं लै रहा कोसिकेंड इनवर्स, आप 2-3 एग्जाम्पल्स पैरेलल लेके चलते हैं। टैन इनवर्स -1 सपोज आ रहे 3 एग्जाम्पल्स, एक होर ले लेने आप 4th कॉट इनवर्स √3। हुन ये आ गया माइनस कोसिकेंट 45, ठीक, एंड दिस वी कैन राइट दिस। मैं दोनों मैथड्स हैं, दैट इज ऑन यू। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ माइनस tan 45 और tan inverse and tan operate with each other. Our answer is this. A वैल्यू sec ते 30 ते है, तो that is there. This is of 30 at 30, तो that is there. सिर्फ प्रॉब्लम कितने आनी है नेगेटिव च आनी है। तो मैं तुम सीधा दा फंडा दसदा, जो एंगल नेगेटिव आ गया when we have angle negative, तो रेंज चेक करो किस दी रेंज 0 to पाई दे विच है। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, देखो रेंज चेक करो। हुण एक तो सब तो पहली गल अपनी रेंज cos इनवर्स x दी है 0 to पाई, एम आई राइट। होर अपने कोल किस दी है sec इनवर्स दी है, होर किस दी है देखो अपने कोले sec इनवर्स दी है। sec इनवर्स दी रेंज कितनी है, अगर आप sec चेक करो, आप टेबल ते गल कीती सी, दैट इज 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। थर्ड एक होर अपने कोले, थर्ड अपने कोले की है cot इनवर्स x, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ओपन इंटरवल 0 to पाई। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੈ, तो ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ नेगेटिव की होने हैं cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सेकंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेकंड इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, बाकी तीनों का एज इट इज है। तो अगर तुहाडे टेबल याद है तुसी इहनूं भी वेरी ईजीली सिंपलीफाई कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन इस होर है, इत्थे तो चलो आपां नूं टेबल वैल्यू दी हुई है। समटाइम्स वट वी कैन हैव, अपने कोले क्वेश्चन आ जाते हैं इस फॉर्म च, आ गया सपोज आ क्वेश्चन आ गया अपने को, सपोज आ गया, क्योंकि इदों पहला तो आप गल कर रहे थे पूरे एंगल की,
ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਕ दिस इज 3π/4। अगर मैं डायरेक्ट लिखा, मैं हाले लिख रहा, मैं आंसर नहीं लिख रहा, मेरे को वैसे ही दिख रहा वट वी कैन राइट, ਆਪਾਂ लिखांगे है ना, यही लिखांगे ना। हुण क्वेश्चन ये है जो tan इनवर्स है, what is the domain of tan inverse? All real numbers, domain यही है ना, and range is that, तो it is there। इनू सॉल्व किया 7π/6 आ गया, लेकिन वट वी नीड दिस, अगर तो ये वैल्यू ये हैगी है फिर तो आंसर है, क्योंकि देखो जी tan इनवर्स दी सी आ सी अपने को रियल अपनी रेंज सी आ डोमेन सी, ये वैल्यू ये हैगी है, तो दिस इज आंसर। लेकिन आ वैल्यू इस नहीं हैगी, तो इट मीनस आपां नूं इहनूं सॉल्व करना पैना है। किवें करांगे हुण, इत्थे 6 ਨਾਲ डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू 6 लिखो, दैट इज देयर। सैपरेट किया 6π/6 पाई प्लस π/6, ठीक हो गया ना। पहला चेक करांगे, उस बाद देखो साइन 180 प्लस थीटा, सैकेंड क्वाड्रेंट च साइन नेगेटिव आ जाता है, तो नाउ दिस इज दिस, तो ਇਹਦਾ एक्चुअल आंसर की आऊगा -π/6। सेम इत्थे ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ है आप ऑलरेडी लिख चुके हैं 0 to π, लेकिन ये 0 to π ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा, तो सिंपलीफाई होगा किवें cos। हुण तुहाडी मर्जी है, इनू 12π + π लिख दो, दैट इज ऑन यू। तुहाडी मर्जी है, इनू 18π ਦੇ हिसाब ਨਾਲ लिख दो, जिवें तुहानू ठीक लगता है। हुण देखो इनू सॉल्व किवें करांगे आपां, सैपरेट किया 2π + π/6, 2π + थीटा, तो आवर आंसर इज π/6। तो ये सी देखो अपना टॉपिक जिस ते आपां हुण गल करदे हां। मेन प्रिंसीपल वैल्यू है जिहड़ियां इस दियां या इस दे जिहड़ियां डोमेन रेंज है, ये इज द फर्स्ट फेस है। सैकेंड फेस जिहड़ा हैगा अपने कोल इहदे फार्मूलिਆਂ ਦਾ, जो इहदे फार्मूले ने अपने कोल सारे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, सेम कॉस इनवर्स एक्स वाई दे, सेम टैन इनवर्स दे, या सिंपलीफाइड फॉर्म ने जो आप डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स किए हैं। आप एक दो एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं, तो यू कैन डू इन दैट, उन्होंने भी लर्न करो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट। क्योंकि एग्जाम दे विच देखो की आना है वी डोंट नो, एक सिर्फ आइडिया होंदा अपने कोले किवें सॉल्व करना है। एक सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की है, आहा साइन इनवर्स कोई भी अपन वैल्यू दी है p/h, कॉस इनवर्स b/h, टैन इनवर्स p/b, कॉट इनवर्स b/p, सेक इनवर्स h/b, कॉसेक इनवर्स h/p। मतलब की है मैं समझाना, सपोज साइन इनवर्स x देता, ऑप्शन आ गया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टैन इनवर्स आ गई, वी हैव टू फाइंड, ये फिलअप करना आप ठीक। हुण साइन नूं की करांगे, इस x नूं आपां p/h जो साइन का स्टैंडर्ड रूप है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उहदे अकॉर्डिंग लिखांगे p/h। विद पाइथागोरस वी हैव दिस, यही हो गया ना अपने कोले। ते हुण टैन की हुंदा p/b, तो इसदा मतलब आ वैल्यू अपने कोले सेम रहनी है ठीक। सपोज कॉट इनवर्स x आ गया, हुण कॉट इनवर्स हुंदा b/p, दिस इज देयर, तो पाइथागोरस नाल आपां सॉल्व करांगे, आ बन जाऊगा ठीक है। अगर ये इन टर्म्स ऑफ साइन आ गया तो साइन इनवर्स p/h, कॉस आ गया कॉस इनवर्स b/h, टैन आ गया टैन इनवर्स p/b, सेक इनवर्स h/b। तो जो आप 10th क्लास दे विच इन्हां दा टी रेशो का कॉन्सैप्ट किया है, उस अकॉर्डिंग आप की करांगे इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुहाडे ते तुसीं इहनूं किवें डील करदे हो। तो दोस्तों यह सी तुहाडा सैकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई वॉज एक्सपैक्टिंग कि जो तुहानूं थ्योरी कंप्लीट दी है, जो फॉर्मूले है उसका एक पेज मैं तुहानूं इस लैक्चर के एंड ते लगा दूंगा, सो दैट यू कैन लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।